Hi, I am Anurag Nandan and welcome to our podcast. Our today's podcast is going to happen with Vimal Rathore sir. Before starting this conversation, let me clear out this thing on what points we are going to figure out how grade system really works and why did he leave his high paying IT sector job and entered in education field, and for parents how parents are unknowingly creating academic pressure on their children for performing better, and many other things which is useful for parents as well as students also. Welcome, sir. Thank you. First, tell me why did you leave your high-paying job from a multinational company? Because that job are dream for many people. I agree with you, Anurag, and often a lot of people ask me this question. Yes. Very interesting story. Since my childhood, I studied in KV Fatehgarh, Okay. and at that point of time, I realized, maybe being very good in academics, I realized कि education थोड़ा अपने यहाँ छोटे शहर हैं तो standard is bit low. कुछ लूप होल्स हैं. Yeah, loopholes are there. So I just moved ahead in my life. I did my computer engineering and then joined corporate world. But दिमाग में वो एक था कसक थी कि अगर कुछ लाइफ में बन गए तो अपने शहर के लिए I wanted to do something, and what could be that something? That was definitely education system, because being a student, I realized वो दर्द मैंने फील किया था. So by 2008 or 9, काफ़ी समय हो गया था, 12-15 साल, मे बी सॉरी 7-8 साल इन IT फील्ड. So I thought, now this is the time I can just take up some steps. So during this journey in corporate world, I visited so many countries and I interacted with people, and being engineer, तो एक होता ना कि टेक्निकल पार्ट एंड एकेडमिक पार्ट आई कुड को रिलेट कि एज अपने इंडियन एजुकेशन सिस्टम में जो बाकी कंट्रीज में जो सिस्टम है, वेयर डू वी डिफर एंड वेयर आर वी लैकिंग. Will you please tell me what kind of differences you have find in Indian education system and foreign education system? या हम लोगों के यहाँ हमारा पूरा ध्यान रहता था मार्क्स स्कोर करने पर, अच्छे मार्क्स, एंड वी आई थिंक सोसाइटी में भी या घरों में भी उसको वैल्यू दी जाती है. बट जो रियल लर्निंग होती है, व्हेन यू हैव टू अप्लाई दैट नॉलेज, समवेयर वो पार्ट मिसिंग लगता था. व्हेन यू आर इनटू जॉब एंड यू रियलाइज कि नहीं, यू हैव टू पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट्स टू रीच टू दैट लेवल वेयर यू कैन कंप्लीट योर टास्क. तो जब मैं बाहर गया तो बाकी कंट्रीज के सिस्टम्स भी मैंने इवेल्युएट किए. ऐसा नहीं अपने यहाँ सिस्टम्स अच्छे नहीं थे, एंशिएंट टाइम में काफ़ी अच्छे सिस्टम थे, और ऐसा नहीं अपने यहाँ करना नहीं चाहते थे, करना भी चाहते थे, बट समहाउ जो भी एक दौर चल रहा था, एक तरीका चल रहा था, वो कन्विंसिंग मुझे नहीं लगा. ये एक वजह रही कि मुझे लगा कि आई शुड कम बैक टू माई होम टाउन, एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज आई वॉन्टेड टू गिव बैक टू माई होम टाउन. तो मुझे लगा कि मैं आके अपने शहर के लिए कुछ कर सकता हूँ. कॉर्पोरेट जॉब से आपने सीखा क्या है? Yeah, lot of things, because how to be a professional. प्रोफेशनल को नॉर्मली इस वर्ड को लोग अपने यहाँ थोड़ा सा नेगेटिव नोशन के साथ लेते हैं, बट आई रियली एडमायर दिस वर्ड, बीइंग प्रोफेशनल, बिकॉज you are committed. Okay. Right, whatever you commit, you fulfill those your commitments. So I call it as a real professionalism. Okay. Right. You also build up a lot of connections there. In my career, I got an opportunity, I could say कि एक इंटेलेक्ट लेवल होता है लोगों का, तो ऐसे लोगों के बीच में उठना बैठना, चीज़ों को समझना, सो दैट एक्सपोजर विच आई गॉट, वो मुझे लगता है थैंक्स टू माय कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस. It's true that a professional person is committed to their commitment and committed to their work and many other things. Did you really think that shifting your career from IT sector job to the educational field is really worth it? Yeah, it's really worth it. और मुझे ऐसा लगता है कि आज 10 साल हो गए हैं मुझे फर्रुखाबाद आए हुए. नॉट इवन फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड मुझे ऐसा लगा हो कि नहीं, आई टुक रॉन्ग डिसीजन. एंड मुझसे पहले मेरी वाइफ आ गई थी जिन्होंने चीज़ें यहाँ पर ऑलरेडी शुरू कर दी थी. सो इट्स रियली वर्थ इट, एंड द काइंड ऑफ इम्पैक्ट वी आर क्रिएटिंग, मज़ा आ रहा है. क्योंकि लोगों का ना ड्रीम होता है कि पहले मैं अपना 12th पास आउट करूँ, फिर ग्रेजुएशन पास आउट करने के बाद अगर मुझे एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल गई तो मेरी लाइफ सेट है. लेकिन ये काफ़ी सारे लोगों का ड्रीम था, उसको आपने छोड़ा, फिर अपना एक स्टार्टअप किया, तो कभी कोई रिग्रेट नहीं है? कोई रिग्रेट नहीं. आई वुड लाइक टू ऐड, या मेरा ड्रीम था टू कम बैक. मतलब मैं इस लायक हो जाऊं, मैं अपने शहर के लिए कुछ वापस कर पाऊँ. तो सब लोग अपने, एवरीवन चेजेस देयर ओन ड्रीम्स. So for me, maybe that corporate career was not the only thing,
I wanted to reach out to some stage where I can fulfill my real dream, which I really wanted to give back to my city. आपने बताया था कि स्टूडेंट्स को क्रेडिट के बेसिस पर जज नहीं करना चाहिए. विल यू प्लीज टेल अस हाउ डिड नो ग्रेड सिस्टम रियली वर्क्स? हाँ, वेरी इंटरेस्टिंग. देखिए, स्कूल्स में नॉर्मली जो रूल्स रेगुलेशंस नॉर्म्स हैं वी हैव टू फॉलो, सो ग्रेडिंग सिस्टम इज देयर. बट इन माय स्कूल आई हैव माय ओन सिस्टम. इट्स अ सेपरेट सिस्टम अपार्ट फ्रॉम दैट रेगुलर सिस्टम. तो मैं आज तक कभी किसी की मार्कशीट नहीं देखी, और बिना मार्कशीट देखे मैं बच्चे के बारे में आपको बता सकता हूँ. कोई भी स्टूडेंट्स हो? हाँ, कोई भी स्टूडेंट. मैं थर्ड ऑनवर्ड्स हर बच्चे को, बस बिकॉज आई इंटरेक्ट विद देम सो मच. मैं पढ़ाता भी हूँ, मेरा रेगुलर इंटरेक्शन रहता है, इतना ज़्यादा रहता है. तो बच्चों से जब आप इंटरेक्ट करते हो, उनको समझते हो, तो धीरे धीरे आपको समझ में आने लग जाता है. हर बच्चा सीखना चाहता है. देखिए, कोई बच्चा कम नहीं होता है. ये जो मार्क्स वाला है, ये तो एक दो घंटे में आपने उसका एग्जाम लिया, उससे पहले उसने कैसे तैयारी ली, एंड विद अ सेट ऑफ थिंग्स यू ट्राई टू जज बेस्ड ऑन द मार्क्स, विच आई बिलीव इट्स अनफेयर. राइट. जो मेरा सिस्टम है, मैं बच्चों से रेगुलर बेसिस पे, जैसे एक पेरेंट से आप पूछिए कि आपका बच्चा कैसा है, उसको टेस्ट लेने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए. राइट. तो इसी तरीके का हमारा सिस्टम, जहाँ पर हम बच्चे का बिहेवियरल एस्पेक्ट और बच्चों से जब बातचीत करते हैं या हम उनको सिखाते हैं उनकी थॉट प्रोसेस कैसी है, फिर उनको हम कुछ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करते हैं. इट्स नॉट समथिंग प्लान, इट्स लाइक कन्वर्सेशन में चलो हम खेलते हैं, तो उस दौरान आप उनको मतलब उनको देख रहे हो कि किस तरीके से क्या बच्चा मूव कर रहा है, कैसे सोच रहा है. तो ये सब चीज़ें इस दौरान हमें बच्चों के बारे में पता लगती है. और कोई बच्चा अच्छा और बुरा नहीं होता. तो मैं तो व्हाट आई बिलीव, कोई बच्चा गलत नहीं होता है, कोई बच्चा अच्छा और बुरा नहीं होता. इट्स जस्ट वेदर ही इज डूइंग इट और ही इज नॉट डूइंग इट. इन्वॉल्व विद देम, ऑल विल स्टार्ट डूइंग इट. हमारे टाइम में क्या होता था, जो बैक बेंचर्स हैं उनका रिलेशन टीचर से और प्रिंसिपल से थोड़ा सा दूर रहता था. लेकिन जो टॉपर्स हैं, जो एकेडमिक फील्ड में बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, वो ज़्यादा क्लोज रहते थे. तो बैक बेंचर्स का प्रिंसिपल से वो कभी रिलेशन बना ही नहीं कि हम सारी चीज़ें उनसे इतना क्लियरली डिस्कस कर पाएँ. ये भी अगेन वेरी गुड क्वेश्चन, बिकॉज आई हैव बीन थ्रू आउट टॉपर. लेकिन मेरे दोस्त कभी ऐसे नहीं रहे कि सब बहुत बढ़िया, हर तरीके के दोस्त. तो ये जो आपने प्रश्न पूछा, तो मैं वो फीलिंग्स भी समझता था. शायद मुझे लगता है कि मैं बचपन से ही, अपने स्कूल डेज से ही, ये सब फीलिंग्स मेरे लिए कंसर्न हुआ करते थे. मैंने भी यही ऑब्जर्वेशंस की, तो मुझे कष्ट भी होता था. ये बेचारे मेरे साथी. राइट. तो अपने यहाँ स्कूल में, ज्ञानफोर्ट में, एटलीस्ट वी ट्राई टू सॉल्व दोज इश्यूज एंड द वे वी हैंडल. हम लोग हर बच्चे पे जब ध्यान देते हैं, तो बैक बेंचर वाला, ओके, व्हाट आई बिलीव, दिस बैक बेंचर इज इट्स अ माइंडसेट. बिकॉज बच्चा एक दूरी बनाना चाहता है. हाँ. तो हमने अपने यहाँ जैसे यू शेप में अरेंजमेंट कर दिया. हमने कहा लो सब फर्स्ट डेस्क पर है. बैक बेंचर वाला कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं. ज़्यादा थोड़े से ज़्यादा अगर बच्चे होते हैं, मे बी तो 4 डेस्क यहाँ पर रखती. तो अगेन वो 4 डेस्क ऐसा है कि बिकॉज इट्स रीचेबल, अप्रोचेबल, तो किसी के अंदर वो फीलिंग आती ही नहीं है. अच्छा, बच्चा भी बैक बेंचर नहीं बनना चाहता है. देखिए, बच्चे का बाल मन को समझने की ज़रूरत है. स्पेशली इफ आई जस्ट टॉक अबाउट एट एनी एज इन स्कूल, उसको इट्स जस्ट, उसके लिए फन लगता है, या जस्ट टू अवॉइड समथिंग इज अ फन, और टू गेट इन्वॉल्व इनटू समथिंग इज अ फन. तो उसको लगता है कि नहीं, ये लोकेशन है मेरे लिए बहुत सही है, यहाँ टीचर कम आता है, मैं अपनी कारस्तानी कर लूंगा, कर सकता हूँ. लेकिन जहाँ पर अप्रोचेबिलिटी बढ़ती है, टीचर वहाँ पहुँचता है और टीचर उनके साथ एंगेज होता है, तो उनको सही रास्ता दिखाई देता है और हर बच्चा सही रास्ते पे चलना चाहता है. ऐसे एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ. इन माई स्कूल में यूजली होता है ना, बोलते बच्चों को शोर मत मचाओ, बातचीत मत करो. वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट. अरे भाई, बच्चे बैठे हैं, हम ही बैठे हैं. अभी एक कॉन्फ्रेंस रूम में बुला लीजिए, लोग बैठे और टीचर का मान लो वेट कर रहे हैं किसी का, तब तक बात करेंगे. अब करेंगे, इट्स क्वाइट नॉर्मल बिहेवियर. और हम बच्चों से एक्सपेक्ट करें कि बात मत करो, हाउ कुड इट हैपन. तो मैं उनको, हाँ, बच्चों को बोलता नहीं बच्चों, या बात करो, बट इतना ध्यान रखो कि पास वाली क्लास डिस्टर्ब ना हो. भाई, आप रोबोट तो है नहीं, आप मशीन तो है नहीं कि हम स्विच ऑन ऑफ कर दें. अनदर थिंग इज व्हेन योर टीचर एंटर्स इन क्लास, सो देयर इज अ पर्पस टू दैट क्लास. वहाँ पर आप अपनी बातचीत ना करें. बी रिस्पेक्टफुल. इट्स अ लर्निंग एनवायरनमेंट. आप लर्निंग के लिए बैठे हो, तो इट्स अ विन विन सिचुएशन. बच्चा भी समझता है कि हम उनकी बात भी समझ रहे हैं. अदरवाइज इफ यू ट्राई टू एनफोर्स दैट रूल कि डोंट मेक नॉइज, डोंट मेक नॉइज, come on, so many, मतलब 25-30 students are sitting together in 5 minutes, they are not doing anything. What else would they do? They are, after all, they are human beings. I have saw a video on internet in which Japan's students
Probably he or she is in third or fourth grade. He was in a park. They have to do some kind of assignments that they have to approach strangers and talk to them that what's your name and why did you came to this palace. They have to note down answers on their sheets and show them to the teachers that this I talk with them and here is the results. So हमने उस वीडियो से ऑब्जर्व किया कि इतना छोटा बच्चा किसी भी स्ट्रेंजर के पास जाके उन्हें अप्रोच कर रहा है और विदाउट एनी हेजिटेशन वो सारी चीज़ें पूछ के टीचर्स को अपना आउटकम दे रहा है. इंडियन एजुकेशन सिस्टम फील्ड में ऐसा क्यों नहीं कि हमारे थर्ड या फोर्थ क्लास के बच्चे के अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस है कि वो किसी भी स्ट्रेंजर्स को अप्रोच कर सके. I would say कि अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, द काइंड ऑफ चेंजेस हैज बीन डन इन द एजुकेशन सिस्टम, आई रियली अप्रिशिएट दोज चेंजेस. दे इनेबल स्कूल एंड द होल एजुकेशन सिस्टम सो दैट अपने बच्चे इसी तरीके के बने. एज ए स्कूल हमने ऐसे कई कदम उठाए और आई वुड से कि दीज आर नॉट सम स्पेसिफिक एक्टिविटी. डे टू डे लाइफ में इन स्कूल इटसेल्फ, लेट्स से वी हैव अ मेस, तो हम बच्चों को जिम्मेदारी देते हैं, बच्चों आप सर्व करो. एंड वो भी वो जो वॉलंटियर्स होते हैं ना, इट्स लाइक रोलिंग वॉलंटियर्स कि एक वीक के लिए ये 5 बच्चे, अगले वीक अनदर सेट ऑफ 5 स्टूडेंट्स, या ग्राउंड पर कई क्लास के बच्चे खेल रहे हैं. सो यूजली होता है कि सब बच्चे अपना खेल रहे हैं, सो वी ऑल्सो इनेबल देम कि ठीक है आप खेल रहे हो, आपसे जो छोटा है तो जाओ उनको सिखा सकते हो क्या. वी जस्ट सिंपली आस्क देम, कैन यू जस्ट टीच देम, अच्छा हाउ इज दैट गाय प्लेइंग, वो बोलेगा हाँ ये कमी, कैन यू टीच देम. आज के पीरियड में आप उनको समझा सकते हो, बता सकते हो, सिखा सकते हो. तो इस तरीके से जब बच्चों का इन्वॉल्वमेंट होता है तो उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है. द सेम वे सम ऑफ द एक्टिविटीज वी हैव टेकन, लेट्स से अपना जब इलेक्शन का टाइम हुआ या इन्वायरमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज, तो हम बच्चों को बोलते हैं कि ओके गाइज, समस्या के बारे में पहले तो हम बात करते हैं अपने यहाँ वोटर्स टर्नआउट कितना कम होता है, तो क्या आप अपने पड़ोस में जाके लोगों को समझा सकते हो. तो ऐसे हमने इनिशिएटिव्स, कैंपेन, मे बी 4 वीक और 6 वीक कैंपेन हमने रन किए. बच्चों को बोला, उनको एक शीट प्रिपेयर करके दिया, यू जस्ट पुट ऑल द नेम्स एंड टेल देम अबाउट, तो दे just spread that awareness about voting and then they also give them certificates. तो छोटे बच्चे जाके जब उन अपने पड़ोसियों से बात करते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता है और उनके अंदर एक समझ भी पैदा हो रही होती है. ठीक है, वोट डालने के लिए वो 18 साल के बाद तैयार होंगे, बट उससे पहले उनको पता होता है कि गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होती है, किसका रोल है, नॉर्मल सिटीजन का रोल है, दे आर सपोज टू वोट. अगर वो वोट नहीं कर रहे हैं सो देयर आर सम इश्यूज. तो बच्चों को एक कॉन्फिडेंस ये भी होता है कि देखिए कितने बड़े काम में इनकी सहभागिता है. ऐसे ही आप इन्वायरमेंट रिलेटेड कोई भी इश्यूज उठा लीजिए, तो पहले बच्चों को हम ये, आर यू डूइंग इट. देखिए एक होता है कि जाके स्प्रेडिंग अवेयरनेस, दिस कुड बी जस्ट ए जनरल टास्क कि जब अपने पर इम्प्लीमेंट करने की बात आ रही है तो नहीं, तो पहले हम बच्चों को ये जागरूकता या उनसे ये समझना कि आप कितना कर रहे हो. जब आप स्वयं करते हो, सही कदम उठाते, तब आप दूसरों को बताने जाएं. तो इस तरीके से हमारे बच्चों ने बहुत अच्छे कदम उठाए. वन वेरी इंटरेस्टिंग इंसिडेंट आई वुड लाइक टू कोट. ड्यूरिंग कोविड टाइम आई रिमेंबर, सब कुछ घर बैठ के बच्चे पढ़ रहे थे. ठीक है, हमारे बच्चों ने उस दौरान 6 वीक का कैंपेन, एक जिद करके कैंपेन चलाया था और 165 लोगों को उन्होंने कन्विंस किया था कि आप वैक्सीनेशन लीजिए. और सिर्फ कन्विंस नहीं किया था, दे मेंटेन्ड डेटा. उन्होंने एक प्रोग्राम भी क्रिएट किया, गेमिफिकेशन के जरिए स्प्रेड किया, कॉल ओवर द फोन, लाइक अपने चाचा चाची, मौसा मौसी, जितने रिलेटिव आस पड़ो, ओवर द फोन दे कन्विंस एंड दे आस्क ओके आपने कब वैक्सीनेशन लिया. तो उनकी डेट, नेम, एवरी ऑल डिटेल्स दे हैव फिल्ड इन. सो इन टोटल 165 लोगों को प्रेरित करना और इंश्योर करना कि ये वैक्सीनेशन के लिए जाएं. सो एट दैट टाइम हार्डली आई थिंक 5th 6th क्लास के स्टूडेंट ये लोग थे. तो ऐसे कई एक्टिविटीज़, मुझे लगता है हर स्कूल को ऐसे कुछ ना कुछ करवाते रहना चाहिए. टेल मी दैट स्टोरी वेयर आपने बताया था कि स्टूडेंट्स ने एक पीएम ऑफिस में लेटर भेजा. ये वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. जहाँ भी हम बैठे स्कूल में, ये जो सामने रोड बनी हुई है, सो आई रिमेंबर 5th क्लास में बच्चों ने गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा कि हाउ डज गवर्नमेंट वर्क्स. ओके, तो I normally go to classes and बच्चों से एक बातचीत होती है. ओके, व्हाट हैव यू लर्न. तो उन्होंने बोला कि हमने ये पढ़ा. तो मैंने उससे जनरल क्वेश्चन, व्हाट इज गवर्नमेंट, मतलब कैसे, डेफिनेशन नहीं पूछनी मुझे, आंसर नहीं पूछना, मतलब कि ओके क्या रोल है, क्या करते हैं. तो एक ना साधारण सी बातचीत में बच्चे बताने लग गए कि ये ऐसी ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हो. तो मैंने ओके,
तुम्हें पूरी नॉलेज हो गई है, कहीं तुम्हें लगता है कि ऐसी कुछ प्रॉब्लम है जहाँ पर गवर्नमेंट को इंटरवीन करना चाहिए, कुछ कदम उठाए जा सकते हैं? क्विकली दे रियलाइज कि स्कूल के सामने की रोड बहुत खराब थी. सो वी टॉक्ड अबाउट दैट प्रॉब्लम कि ठीक है खराब है, सो व्हाट, खराब है, अच्छी नहीं लग रही. नहीं नहीं बोले, वो टीचर एक आई, स्कूटी से गिर गई, उनको चोट लग गई, बारिश के टाइम हम लोग जाते हैं, वो काफ़ी दिनों से रोड खराब थी. तो मैंने कहा ओके व्हाट एल्स कैन बी डन. सो बिकॉज आवर स्टूडेंट्स न्यू कि वी शुड रीच आउट टू पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, MLA, MLC, वी शुड रीच आउट टू DM सर. तो ये 2 कदम मैं ऑलरेडी उठा चुका था. तो मैंने कहा यस आई हैव रीच आउट टू देम, और उनको थोड़ा बताया कि इतने दिन हो गए अभी तक कुछ कदम उठा नहीं. व्हाट एल्स कैन यू डू. बच्चों के दिमाग में हिट किया कि मोदी जी की मन की बात वाली, कि ये मन की बात होती तो हम लेटर लिखेंगे उनको. सो आई रिमेंबर बच्चों ने CM हेल्पलाइन उस समय आई थिंक 1077 और समथिंग लाइक, दे कॉल्ड अप एंड दे हैव रिटन लेटर. और मैंने उनको साफ बोला देखो एज ए स्कूल डोंट कम टू अस कि सर दिस इज द लेटर, बिकॉज हमें एप्लीकेशन राइटिंग स्किल नहीं समझती, यू डू ऑन योर ओन. तो हमारे बच्चों ने लेटर्स लिखे, पोस्ट के जरिए PMO ऑफिस, CMO ऑफिस भेजे, एंड उसी दौरान PMO ऑफिस से एक लेटर विद ऑल रिमार्क्स केम कि या दे आर गोइंग टू टेक एक्शन, एंड आई बिलीव दे हैव इन्फॉर्म्ड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल. एंड फिर ये जो रोड सामने की बनी हुई, फख्र के साथ कह सकते हैं हमारे 5वीं और 6ठी के बच्चों के प्रयास थे. एंड आई बिलीव जब हमारे बच्चे इस तरीके के कदम उठाते हैं, बचपन से ही ऐसे कदम उठाने लग जाएंगे, उनका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस देखिए कि किस तरीके का होगा. और उनको पता कि हमारी पढ़ाई सिर्फ वो नंबर लाने के लिए नहीं है, दिस इज द रियल नॉलेज विच दे आर अप्लाइंग इन देयर रियल लाइफ. Sir, do you believe that those students who didn't have the grade pressure on their are performing better in their life in comparison to the students who have the pressure of grading system? Yeah, I strongly believe in this. I strongly, because मेरे पास एक बहुत अच्छा रीज़न भी है. As I said ना, at least throughout schooling I've been a topper. लेकिन फॉर्चुनेटली मेरे ऊपर कभी प्रेशर टॉपर होने का नहीं था, और मैं आई नेवर लाइक टू बी, आई नेवर वांटेड टू बिकम अ टॉपर. तो मैंने वहाँ से भी अपनी फीलिंग्स, मैंने बोला था कि मैं अपनी फीलिंग्स, मेरे फ्रेंड्स की फीलिंग्स, सबको उस समय भी मंथन करता था. और आज भी मुझे ये लगता है कि जो प्रेशर होता है ना ग्रेड का, तो बच्चे फोकस करते हैं कि आई हैव टू स्कोर ऑन दैट नंबर, जो भी 90+, 95+. तो पूरा फोकस कहाँ पर, उस नंबर पर. और नंबर पर लाने के लिए ओके आई हैव टू राइट आंसर्स लाइक दिस, मुझे ये वो सैंपल पेपर कर लेंगे, मॉक टेस्ट कर लेंगे, दे प्रिपेयर देमसेल्फ, good, whatever they want, they achieve it, they pursue to achieve that. But the issue is that the real knowledge? No. तो मुझे लगता है उस नंबर के चक्कर में, और ऊपर से वो रैंकिंग वाला रहता है कि अगर मेरे मार्क्स 94 आए बट मेरे फ्रेंड के 96 आ गए तो मैं उदास हो गया. No, this is not life about, this is not about and life. what kind of things did they really miss during those period? हाँ, अगर देखिए नंबर के चक्कर में रहते तो पूरा फोकस, पूरा प्रेशर, अननोइंगली नोइंगली पेरेंट का भी प्रेशर होता है, अपना सेल्फ क्रिएटेड प्रेशर भी हो जाता है. तो इस दौरान जो रियल नॉलेज है, रियल नॉलेज की टेस्टिंग तो तब होती है ना, मान लो किसी चीज़ के बारे में आपको जानकारी है और उसको जब अप्लाई करने का आपको ना तो मौका मिल पा रहा है और ना आप सोच पा रहे हैं. तो मुझे जो सबसे बड़ी समस्या लगती है इस नंबर सिस्टम के चक्कर में, जो मतलब चेजिंग ओनली नंबर्स, तो इस चक्कर में बच्चे का वो सोचने की क्षमताएं वो भी थोड़ा कम हो जाती हैं. अब इतने सालों की स्कूलिंग में बच्चा शुरू से ये नंबर के चक्कर में रहता है, तो बाद में आजकल जो मैं देख रहा हूँ एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये सब चीज़ें भी. आप सोचिए बच्चा बिल्कुल खुश है, जैसे ही पता लगा 94 मार्क्स उसके हैं, पता लगा फ्रेंड के 96 आ गए, भाई वो उदास हो जाता है. और टारगेट मिला था उसको 98. हाँ वो तो, हाँ टारगेट मिला, वो एक एडिशनल प्रेशर. तो जो रियल नॉलेज, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, और जो फ्रीडम है, फ्रीडम टू थिंक, वो जो फ्रीनेस है ना, वो सब खत्म हो जाती है बिकॉज ऑफ दिस स्कोरिंग सिस्टम. एंड व्हाट आई बिलीव, इससे उसकी जो पर्सनालिटी है, जो रियल में एक शेप अप होनी चाहिए थी, वो स्लो हो जाती है प्रोसेस. उस बेचारे को जब बाद में समझ में आता है कि हाँ इस नंबर के चक्कर में हम कहाँ फंसे रहे, ऐसा नहीं, लोग उभरते हैं, उससे बाहर निकलते हैं. भाई आप बैठे, हम लोग उससे बाहर निकलते हैं. कई बार काफ़ी लेट होता है, फिर उनको लगता है कि अगर काश हमें पहले किसी ने ऐसा गाइड कर दिया होता. तो आई बिलीव पेरेंट्स को भी इस पार्ट को इस चीज़ को समझना चाहिए, स्कूल्स को भी समझना चाहिए कि प्लीज़ ये जो मार्क्स के पीछे
दौड़ने वाली जो होड़ है इसको ख़त्म करें। बच्चे को जब रियल नॉलेज होगी, अपने आप वो चीज़ों को समझेगा, ये मार्क्स आर बाई प्रोडक्ट, ये अपने आप आएंगे। 5-10 नंबर 15 नंबर ऊपर नीचे होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। Let's talk something about parents. How did parents unknowingly created academic pressure on their children? इनफैक्ट जब पेरेंट्स से बात करते हैं तो उनका कहना होता है कि हमने तो अपने बच्चे को बिल्कुल फ्री छोड़ रखा है, लेकिन जाने अनजाने में वो कहीं ना कहीं उस पर प्रेशर डाल रहे हैं कि तुम्हें इतना स्कोर करना है, उतना स्कोर करना है। बहुत सही सवाल आपका अगेन, बिकॉज हम बच्चों के बीच में ही रहते हैं। मेरा तो फुल टाइम आई वुड से 24 आवर्स में, मतलब मेरा अगर पूछा जाए मैं काम क्या करता हूँ तो मैं काम सिर्फ बच्चों के साथ ही करता हूँ। तो ये जो प्रेशर, आप बिल्कुल सही, पेरेंट यही बोलता है कि हम तो प्रेशर नहीं क्रिएट कर रहे हैं, बट अननोइंगली, कई बार तो नोइंगली पेरेंट बोलता है, स्पेशली कि भाई आपको ना, वो बोलता है कि तुम्हें ये बनना है। अब ये बनना है, गोल ऐसा सेट, फिर उसके लिए आप क्लास में फर्स्ट आके दिखाइए, क्लास में भी टॉप 5 में आके दिखाइए। टॉप 5 तो रेयर बोलते हैं, टॉप 3 बोलते हैं, टॉप 3 में आके दिखाइए। अदरवाइज मोस्टली वो बोलते हैं कि भाई फर्स्ट आके दिखाओ। वो बेचारा जो भी लेकर आ रहा है, दे आर नॉट हैप्पी, उन्होंने फर्स्ट लाके मजा नहीं आया। सपोज करते किसी स्टूडेंट्स के 98%, पेरेंट्स उससे सेटिस्फाइड नहीं है, वो उसको बोलते हैं कि अगर काश तुम थोड़ी और मेहनत करते तो ये 100% भी हो सकता था। तो उसका जो कॉन्फिडेंस था 98% का, वो बिल्कुल जीरो चला गया। राइट, ये बहुत बड़ी समस्या है। बच्चा कुछ भी कर ले, उसके बाद कहीं ना कहीं तो वो गैप। ओके, आई हैव अदर वेज ऑफ हैंडलिंग इट। सो सबसे पहले जो आपने ना पेरेंट जो अननोइंगली प्रेशर भी क्रिएट, अननोइंगली ऐसे आप किसी की तारीफ कर रहे हैं, हमेशा मार्क्स वाले उस चीज़ की तारीफ करें, जो मेरे बच्चे में है, जो उसकी खासियत है, हम उसकी कभी चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। हम चर्चा दूसरी चीज़ों की कर रहे हैं जो नहीं है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है, जहां पर अननोइंगली बच्चों के ऊपर भी प्रेशर आता है। अरे हर बच्चे में खास बात होती है, कुछ ना कुछ अच्छा डेफिनेटली होता है हर बच्चे में, हर इंसान में। तो अगर हम उसकी तारीफ करना शुरू कर दें तो फिर देखिए कि बच्चे का लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस हाई रहेगा, उसका लर्निंग एप्टीट्यूड और भी स्ट्रांगली डेवलप होगा। अब ये जो प्रेशर आपने बोला कि 98%, फिर वो 2% कम रह गए, और अप्रोच ऑफ हैंडलिंग इज, मैं बच्चों से ये बोलता हूँ, अगर मान लो कुछ भी उन्होंने अपना किसी इवेंट में पार्टिसिपेट किया, एनी इवेंट फॉर दैट मैटर, बी इट स्पोर्ट्स, कल्चरल और एकेडमिक और एनी एग्जाम, हैव यू गिवन योर बेस्ट? मैं सिर्फ ये सुनना चाहता हूँ। बच्चे, बहुत से बच्चे बोलते हैं हाँ हमने दिया, कुछ बच्चे बोलते हैं नहीं दिया। जिसने दिया है बहुत अप्रिशिएट, जिसने नहीं दिया उसको भी उतना ही अप्रिशिएशन। द रीजन बीइंग, अरे एटलीस्ट हमारे बच्चे ने रियलाइज तो किया कि मैंने नहीं दिया है। दिस इज द बिगिनिंग। Why should not be celebrate? We should celebrate these things. And normally parents or people just forget this part. मुझे लगता है कि चाहे कुछ भी हो, बच्चे ने रियलाइज किया, सोचिए मुझे तो इतनी बड़ी खुशी होती, अरे आज इसने रियलाइज कर लिया है। एंड लेट्स टॉक, अच्छा तुम्हें लग रहा है तुमने नहीं दिया, व्हाट वर द प्रॉब्लम्स, आई एम देयर विद यू, आप बताइए, उसकी प्रॉब्लम समझिए और उसको वहाँ सपोर्ट दीजिए। देखिए वही बच्चा बहुत अच्छा अपनी लाइफ में करेगा, हर चीज अच्छे से करेगा। एक उसके अंदर समझ भी पैदा होने लग जाएगी किस समय क्या करना। भाई पढ़ाई का टाइम है तो पढ़ाई कर लो, खेल का टाइम है तो खेलो, हर जो भी करना है अच्छे से करिए। तो ये सोच डेवलप होती है विद दिस काइंड ऑफ अप्रोच। सो ये क्वेश्चन है, हैव यू गिवन योर बेस्ट? आई वुड से कि दिस इज वेरी क्रूशियल क्वेश्चन व्हिच एवरीवन शुड आस्क। इफ पेरेंट्स फाइंड आउट दैट देयर चिल्ड्रन डिडंट गिवन देयर बेस्ट, they start to criticizing them. So criticizing the children on anything, how did this create a mental pressure on them? Yeah, definitely, because आप बच्चे को जब क्रिटिसाइज कर रहे हो, निगेटिविटी आने लग गई है। वो तो ये बोल रहा कि हाँ हम अपने बचपन में जाएं। देखिए कितना आसान है इन चीज़ों को समझना, कोई भी इंसान समझ सकता है। हम अपने बचपन में जाएं कि हमसे मान लो चलो गलती हो गई, या जानबूझ मैं शैतान था, मुझसे गलती हो गई और उसके बाद मेरी डांट पड़ रही है। ठीक है, डांट में मैं थोड़ा सा सुलझा हुआ तो मैं सोच सकता हूँ मुझसे गलती हुई, डांट पड़ गई, इट्स ओके। बट उसके बाद अगर कि मेरे को सपोर्ट एक मेरे लिए क्रिएट कर दिया जाए, वो जो सपोर्ट मिसिंग रहता है, तो हमेशा ये होता है ना कि मेरी तो डांट ही पड़नी है। बच्चा एक हीन भावना उसके अंदर पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से ये स्ट्रेस बहुत ज़्यादा, और उसके अंदर फिर वो सुधार वाली गुंजाइश उस बचपन में तो नहीं रहती, बड़ा होके जब समझता है हो सकता है तब अपने आप आती हो। लेकिन जो पेरेंट्स का, टीचर्स का एक रोल रहता है उसके बचपन के दौरान उसका साथ देने का, मुझे लगता है वो मिस रहता है। वो अगर मिल जाए बच्चे को तो सब बच्चे बड़ी समझदारी से अपनी लाइफ एंजॉय कर सकते हैं।
स्टूडेंट्स जब एग्जाम्स में परफॉर्म करते हैं और वो किसी भी कैटेगरी के मार्क्स लाते हैं, 75, 80, 90, 95, those marks are really important for their future or not? दे आर नॉट रियली इंपॉर्टेंट, दे आर नॉट रियली इंपॉर्टेंट। आप खुद एक बार समझ के देखिए थोड़ी देर के लिए, आप जो भी बच्चा मार्क्स लेकर आया, एज ए सेड, अरे बच्चा है वो तो उसको तो बहुत कुछ लाइफ में सीखना है, ठीक है। और हम उसको ये बोल दें जस्ट बिकॉज ऑफ दोज मार्क्स, लेट्स से कम मार्क्स लेकर आया और उसको बोले कि नहीं तुमने अच्छा नहीं किया, वो तो निगेटिविटी का शिकार हो गया। वो बेचारा कहाँ से कर पाएगा, क्योंकि वो मार्क्स तो लाइफ नहीं डिसाइड करने जा रहे हैं। करेक्ट, राइट। उस व्यक्तित्व के ऊपर हमें वर्क करना होता है। वो जो छाप पड़ती है, वो मार्क्स को साइड में करके, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हमारा 10th का रिजल्ट निकला, तो व्हेन वी वर सेलिब्रेटिंग, ऑल स्टूडेंट्स वर सिटिंग देयर। मैंने बच्चों से पूछा, यू नो गाइस, सबसे ज्यादा मजा मुझे किसका रिजल्ट में, मतलब आई रियली अप्रिशिएट, मैं बहुत खुश हुआ। तो देयर वर फ्यू स्टूडेंट्स जिनको लेकर, बिकॉज उनका जब प्रोफाइलिंग हमने पूरा किया पिछले 2 साल का, तो जिस दौर से वो बच्चे गुजर रहे थे, तो चाहे वो 75% रहा हो, चाहे 74% रहा हो, जो भी, मैंने बोला इनका अगर 64% भी रहता तब भी मैं उतना ही खुश होता। जो 96% वाला बैठा था, मैंने कहा अरे ये तो तुम्हारे आ ही जाने थे। लेकिन खुशी मेरा वो, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ परसेंटेज, जिस तरीके से उसने एग्जाम्स को हैंडल किया, जिस तरीके से अपने को उसने संभाला, तो मुझे लगता वो काबिले तारीफ बच्चा था। आप बाकी तो दैट इज अ नॉर्मल थिंग। सो ये मार्क्स वाला ज्यादा प्रेशर क्रिएट करने से मुझे लगता है उसकी पर्सनालिटी पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। राइट। उसके अंदर एक हीन भावना आती है, उसको लगता है कि मैं नहीं कर सकता हूँ, या फिर एक इस एज में, स्पेशली बिकॉज दीज किड्स आर इन, स्पेशली मैं स्कूल गोइंग किड्स स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, दे आर इनटू टीनेज। वैसे भी थोड़ा सा हर चीज़ बहुत फास्ट ग्रोइंग फेज में होते हैं, हर चीज़ नई सी लग रही होती है, और पेरेंट और टीचर के प्रति थोड़ा सा रिबेलियन सा वो आ ही जाता है कि भाई ये मेरी बात समझ नहीं रहे हैं, और ऊपर से हम उनके ऊपर ये दबाव भी बना, तो एक दूरी सी बन जाती है। तो हमारी एक उम्मीद होती है एज ए पेरेंट, एज ए टीचर, कि हम इनको मार्गदर्शन दे पाएँ, बट हम जब दूरी इस तरीके की बना लेंगे तो बच्चे हमारी बात कभी सुनेंगे ही नहीं। हमें सपोर्टर का रोल प्ले करना है, उनके साथ खड़े होना है, और मार्क्स को तूल ना देकर, अगर रियल लाइफ में भी अगर हम समझदारी से इन चीज़ों का आकलन करें, तो मार्क्स हाई स्कूल में, लेट्स से क्लास 10th में, ये 70, 75, 85, 95 सब एक जैसे मार्क्स हैं, बिल्कुल नहीं मैटर करते। एट द एंड या दे हैव टू प्रिपेयर, जो भी अपना चूज कर रहे हैं करियर ऑप्शन, उसकी वो एक्सपर्टीज, वो स्किल बेस्ड एजुकेशन, वो काम आएगी। तो उस डायरेक्शन में, या नॉट मार्क्स कांट बी योर डिसाइडिंग फैक्टर फॉर योर फ्यूचर, दैट्स फॉर श्योर। सपोज करते मेरा बच्चा है और वो एकेडमिक में बेटर परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो एज अ पेरेंट हमें कैसे उसकी रियल स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करना होगा कि एकेडमिक में अगर ये नहीं परफॉर्म कर पा रहा है, तो कोई एक पर्टिकुलर ऐसी चीज़ होगी जहाँ ये बेटर परफॉर्म करेगा। ओके, गुड। सबसे पहले देखिए, कोई भी बच्चा है, हम इसको ऐसे शुरुआत करें, मैं ये आइडेंटिफाई करता हूँ कि बच्चा खुश किस में रहता है। ठीक है, अब आप खुश, कई एक्टिविटीज होती, वो खेल कूद या कोई इवेंट्स पार्टिसिपेशन, और एकेडमिक वाले पार्ट में उसका मन, मान लो थोड़ी देर के लिए बहुत नेगेटिव स्टेट वो ले रहे, उसका ना के बराबर लगता है। ठीक। तो हमें ये तो पता लग गया इन चीज़ों में बहुत मन लगता है, तो उसके मन की बातें मैं ऐसे उसको एंगेज करता हूँ, अच्छा, एंड अप्रिशिएट करता हूँ। देन व्हेन आई अप्रिशिएट, वाओ तुम्हें ये वेरी गुड, तुम्हारा दिमाग तो बहुत अच्छा चल रहा है। एक छोटा सा एग्जांपल भी दूंगा। रिसेंटली अभी मैं 6th क्लास के बच्चे से 7th क्लास के बच्चे से मैं इंटरेक्ट कर रहा था। उसको कार्स के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज है, ठीक। पढ़ाई के प्रति वो थोड़ा सा उदासीनता वाला भाव दिखाता है। पेरेंट बोले कि ऐसा, मैंने कहा ठीक है, साथ में वर्क करते हैं। मैंने कहा जितने भी पॉजिटिव्स हैं वो बताओ। कहा भैया कार के बारे में तो ही नोज एवरीथिंग। मैं उससे मिला, आई रियली अप्रिशिएटेड। आई सेड अरे इतना अच्छा नॉलेज, वेरी गुड, बहुत सही, इसका मतलब तुम बहुत शार्प माइंडेड हो। अब देखिए उसकी तारीफ शुरू होने लग गई। एक तो कार वाला और शार्प माइंडेड, इसका मतलब तुम याद भी रख लेते हो चीज़ों को। यस, गुड। तो थोड़ा सा ऐसा करते हैं, एक तुम्हारा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कोई है, लगता है एकेडमिक वाले पार्ट की चर्चा हमने की। बोला हाँ सर, साइंस। मैं कहा थोड़ा सा ये स्किल मुझे लगता है यहाँ भी अप्लाई करके देखते हैं, समझ में आता है, इंटरेस्ट लगता है। हाँ इंटरेस्ट लगता है। मैं कहा ठीक है, मैं टीचर से बात करता हूँ, एंड तुम्हें कुछ एडिशनल प्रोजेक्ट्स भी देगा इस चीज़ के।
अब देखिए उसके मन की बात, एक नई चीज उसको मिली, पहले तो उसकी तारीफ की, फिर उसके लिए उसका इंटरेस्ट एरिया एकेडमिक वाले पार्ट में आइडेंटिफाई किया। वन थिंग एट ए टाइम, आप सब कुछ नहीं ले सकते। और साथ में उसको और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने उसको स्टेम बेस्ड प्रोजेक्ट्स और लॉन्ग रन 4 साल के बाद तक का मैंने क्विकली कि आई वांट कि आज ऐसे पढ़ो, ये प्रोजेक्ट ऐसे आज करो, कल को आप इनोवेशन इवेंट में करिए, फिर देखिए अपने बच्चे IIT गए थे, वहां पर यू शोकेस। तो एक सपना जगा दिया, और ये सपना हम जैसे ही जगाते रहेंगे साथ में निरंतर, जैसे ही सपना जग गया तो आई बिलीव जब वो साइंस में करने लग गया तो इट्स नॉट अबाउट साइंस, मैथ्स और सोशल साइंस, इट्स अबाउट उसकी एक समझ डेवलप हो गई, उसके अंदर एबिलिटीज थी, समझ डेवलप हो गई। तो जो उसके इंटरेस्ट एरियाज है वो तो करता ही रहेगा, उसको पता है कि हाँ ये लर्निंग, ये पढ़ाई लिखाई मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। अगेन मार्क्स का प्रेशर नहीं कि बेटा तेरे को 90 मार्क्स 95 लाने हैं, इंटरेस्ट क्रिएट कर होगा तो जो भी वो कर रहा होगा वो अच्छा करेगा, एंड दिस इज हाउ द होल एकेडमिक थिंग विल गेट इम्प्रूव्ड। ओके, एक डाउट जो ज़्यादातर पेरेंट्स में रहता है कि हमें अपने बच्चे के लिए कौन सा स्कूल चूज़ करना चाहिए, और अगर वो कोई स्कूल चूज़ कर रहे हैं तो वो कौन कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ कह लें जो उस स्कूल में देखें कि हाँ वो स्कूल उनके बच्चे के लिए बेटर है या नहीं है। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज हर पेरेंट चाहता है मैं अपने बच्चे को बेस्ट एजुकेशन दे सकूं। राइट, ओके, तो पहला स्टेप तो ये आता है व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन स्टार्टिंग, भाई स्कूल चूज करना है। नाउ द पॉइंट इज यूजली लोग कि इसका नाम सुना है, उसका नाम सुना है, ओके ठीक है नाम सुना है, जैसे मेरे यहाँ आते हैं पेरेंट्स, हाउ कम यू केम टू ज्ञानफोर्ड, सो कि सर नाम सुना है, अरे क्या नाम सुना है, अच्छा है, क्या अच्छा है। आई बिलीव 60% पेरेंट्स के पास जवाब नहीं होता क्या अच्छा है, वो सिर्फ नाम सुन के आते हैं। नहीं, दिस इज नॉट अप्रोप्रिएट, दिस इज नॉट अप्रोप्रिएट। नहीं, आपको पता होना चाहिए कि ऐसा क्या अच्छा है, क्यों ना, और उनको उसको गहराई में आकलन करें उन चीज़ों का कि रियल में जो मैंने सुना है क्या वो चीज़ें हैं स्कूल में। थोड़ा सा ये एक टाइम टेकिंग एक्सरसाइज है, देखिए एक दिन का निर्णय नहीं होता है, 2 दिन का नहीं होता है, एनीवेज पेरेंट्स टेक्स टाइम, लेकिन वो इतना डीप में जाके कभी भी एनालिसिस नहीं करते हैं। सो आई बिलीव जो आपकी ज़रूरत है कि ठीक है पढ़ाई अच्छी होती है, पढ़ाई अच्छी होती, कहीं भी 40 बच्चे हैं तो कुछ तो अच्छे करेंगे ही, कुछ नहीं करेंगे, जो नहीं करेंगे उनका सोचा कि उनकी हैंडलिंग कैसे हो रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो समझ मेरा बच्चा बहुत अच्छा हो, लेट्स से मी बीइंग एज या यू बीइंग पेरेंट, आपका बच्चा बहुत अच्छा है, आपको लगता है कि ये किसी भी स्कूल में एकेडमिकली बहुत अच्छा करेगा, लेकिन आपको भी ये सोचना चाहिए जो बच्चा एकेडमिकली स्ट्रांग नहीं है उसको स्कूल कैसे हैंडल कर रहा है। टॉपर्स की फोटो तो सभी दिखा देते हैं, बाकी सब बच्चों का क्या, 90% तो बाकी बच्चे हैं या 80% तो बाकी बच्चे हैं। अगर एज ए स्कूल हम सक्षम हैं उन 80% को हैंडल करने के लिए, तभी हम समाज और राष्ट्र निर्माण की बात कर पाएंगे, नहीं तो वो 10% तो सभी जगह बढ़िया होते हैं। तो इन क्वेश्चंस को हर पेरेंट को समझना चाहिए कि इन बच्चों को कैसे हैंडल किया जाता है, किस तरीके से, ये इंपॉर्टेंट है। इन आवर स्कूल वी हैव ए कॉन्सेप्ट कि पेरेंट कैन विजिट आवर स्कूल एनी टाइम और क्लास में बैठ के देखे। There are no foundations of नो timing? फाउंडेशन, नो फाउंडेशन। अचानक से आए कि बस पीरियड ओवर हो, आप बैठिए, जितने पीरियड अटेंड करने हैं बैठिए, अगले दिन आना है जब बिना बताए आप आ जाइए। During the classes also? ये ड्यूरिंग द क्लास में बैठने की मैं बात कर रहा हूँ, क्लास में बच्चों के बीच में बैठे। वी आर दैट ट्रांसपेरेंट, बिकॉज जो मैंने एक प्रश्न पूछा, हम बच्चों को कैसे हैंडल करते हैं, भाई आप देख लीजिए कि बच्चों को कैसे हैंडल करते हैं, अदरवाइज वो चीज़ पता नहीं लगती कि बच्चों की हैंडलिंग कैसे होती है। ये समझना बहुत जरूरी है, दिस कुड बी अ रिवोल्यूशनरी स्टेप एज वेल। So for our students, the most important thing is learning. With your experience, could you please tell this how things are performing good for the students, which leads them for the learning in a very effectively way without the stress? सबसे पहले जैसे लर्निंग, अगर बच्चे को ये समझ में आ जाए, कोई भी, अभी हम एकेडमिक और नॉन एकेडमिक के बीच में कोई भी लाइन ना ड्रॉ करें, एनीथिंग, कोई भी चीज़ सीखनी है, मतलब से गेम का सीख रहे हैं या सम एक्टिंग सीखनी है, ओके, तो सबसे पहले कि उसको क्यों लर्न करे। बच्चे का एक प्रश्न होता है कि भाई मैं क्यों करूं ये चीज़। कई बच्चे होते हैं जैसे उनको एक्टिंग नहीं सीखनी। एक एग्जांपल देते हैं, अगेन लेट्स टेक वर्स्ट केस कि भाई मुझे एक्टिंग का शौक नहीं है, मुझे नहीं मज़ा आता है, ओके, सो इफ़ वी कैन
क्रिएट अ नीड या उसको हम बता पाएँ विद सम सिनेरियोज या इन सम सिचुएशंस कि बेटा देखो बर्थडे पार्टी में गए और सब कुछ एक ऐसा एक्टिविटी हो रही है, उसमें जब बाकी लोग एक्टिंग कुछ बहुत अच्छे से करते हैं तो हमें अच्छा लगता है, बट थोड़ा बहुत अगर आपका चांस आया और आप नहीं कर पाओगे, थोड़ा सा आप डिस्कम्फर्ट सा फील करोगे, राइट? तो थोड़ा बहुत एक्टिंग आना चाहिए, एटलीस्ट यू शुड बी पार्ट ऑफ दैट टीम, राइट? सो दैट वे समटाइम्स ये बच्चों को ऐसे अगर हम समझाते हैं, बट मैंने कई बच्चों में ऐसे देखा कि उनके शौक नहीं होते, वो करना नहीं चाहते, बट वो धीरे धीरे इन्वॉल्व हो जाते हैं टू द एक्सटेंट कि हाँ उनको मजा आने लगेगा। और बच्चा है, उसको बहुत सी चीजें नहीं पता होती हैं, उसको नहीं इंटरेस्ट है तो नहीं इंटरेस्ट है, बट हमारा काम ये होता है ना कि इस तरीके से इंस्टीट्यूशंस को हैंडल करना, उसको रियलाइज करवाना, उसको मे बी एक चांस देना, एक सपोर्ट देना साथ में खड़े होके। तो जब बच्चे को ये समझ में आ जाता है कि हाँ अरे इसमें तो मजा है, करके देखा मजा आया, पहले तो नहीं मजा आ रहा था, तो फिर वो शुरू कर देता है। या फिर ठीक है इतना ही तो करना है, जैसे कई बच्चों को स्टेज फियर होता है लाइफ में, तो स्टेज तो सबको फेस करना ही पड़ता है, ऑडियंस फेस करने होते हैं, राइट? तो धीरे से कैसे निकाला जाता है, इसी तरीके से उनको कई बार थोड़ा सा चांस दिया, एक कदम हम साथ में खड़े कि हाँ भूल जाओगे कोई नहीं, मैं हूँ, ये भरोसा। तो बच्चे को इस तरीके से एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है और उसके लर्निंग का जो एक क्रेविंग वो क्रिएट की जा सकती है। सो दिस इज हाउ यू कैन डू दैट। अगर सपोज करते हैं क्लास है तो क्लास में सारे स्टूडेंट्स तो टॉपर नहीं हो सकते, हाँ राइट। अगर कोई स्टूडेंट है और वो ये चीज़ एब्जॉर्ब कर रहा है कि हम उतना बेटर परफॉर्म नहीं कर रहे हैं जितना हमारे पास वाला टॉपर कर रहा है, तो उसे अपनी लाइफ में क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए? गुड, ये अगेन रियल सिचुएशंस, बच्चे उनको पता रहता है कि हाँ दूसरा बच्चा ज़्यादा अच्छा कर रहा है, इट्स जस्ट एनकरेजमेंट, बच्चा आप कम नहीं हो किसी से, राइट? इट्स जस्ट आपका जो पहले वाली जो प्रिपरेशन जो आना चाहिए था वो आपका इतना स्ट्रांग नहीं रहा किसी भी वजह से। यहाँ पर हम ब्लेम नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं पहले आपने नहीं किया, नो नेगेटिव थिंग, एंड वी हैव टू एक्सेप्ट बेटा पहले नहीं हुआ इसी वजह से तो हमने, बट डोंट वरी, सबका दिमाग बराबर है, वो रेयर की बात नहीं कर रहे हैं, वी शुड नॉट टॉक अबाउट रेयरेस्ट सिचुएशंस और पीपल, ऑलमोस्ट एवरीवन इज, किसी चीज में आप बहुत अच्छे हो, इट्स जस्ट यू हैव टू पुट इन एफर्ट्स, और एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए सिखाने के लिए आपको, तो आप कोशिश करो, आप कर ले जाओगे। तो जब आप सपोर्ट बन के खड़े होते हो, पहले तो उसकी प्रॉब्लम कहाँ पर है वो समझें और सपोर्ट बन के खड़े होते, तो बच्चों में भी ये हिम्मत बढ़ती है कि यस मैं कोशिश कर सकता हूँ, मैं आगे बढ़ सकता हूँ, मैं सीख सकता हूँ। इट्स जस्ट दे विल स्टार्ट गिविंग देयर बेस्ट, कि वो अपना बेस्ट देना शुरू कर देंगे। एंड ट्रस्ट मी, बच्चा सिर्फ या कोई भी इंसान सिर्फ अपने से ये पूछे कि हैव आई गिवन माई बेस्ट, वो लाइफ में खुश रहेगा, वो कभी जेलस फीलिंग का शिकार नहीं होगा, कभी भी उसके अंदर की फला आदमी ने ऐसा किया तो अब मुझे भी उससे ज़्यादा करना चाहिए, ये तो लाइफ को बिल्कुल मतलब मिजरेबल बना देती है ये सोच। तो हमें अपने बच्चों की इस तरीके से ग्रूमिंग करनी चाहिए कि इस मैं अपना बेस्ट देता हूँ, मैं कर सकता हूँ। एक दो केसेस ऐसे हो कि बच्चे स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे थे, मैंने सिर्फ उसी का सहारा लेके देखो कितना बढ़िया कर रहे हो, इतनी सी चीज़ है, ये 4 क्वेश्चन लिए बेटा 2 क्वेश्चन, अरे यू कैन डू इट, मैंने तुम्हारे मैदान में तुम्हारे अंदर ये एबिलिटीज देखी हैं, ये तुम्हारे ये जो इंग्लिश साइंस पढ़ रहा है यही तो एबिलिटीज यहाँ पर चाहिए, यू ट्राई इट आउट, मैं साथ में हूँ, टीचर साथ में है। बच्चों ने परफॉर्म करके दिखाया, बहुत अच्छे से करके दिखाया, बट हमें एक सिस्टम क्रिएट करने की ज़रूरत है जहाँ पर इस तरीके से बच्चों को एनकरेजमेंट मिले एंड रियल में सपोर्ट मिले और उनकी बात समझी जा सके। टेल मी समथिंग अबाउट द एजुकेशन सिस्टम, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स आर करेंटली ब्रोक इन करेंट एजुकेशन सिस्टम? हाँ, सबसे बुरी चीज़ तो मुझे ये लगती है रट्टाफिकेशन, रॉटन एजुकेशन, जिसमें पूरा रटना 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 रटना, एंड देन दूसरा एक जो जोर रैंक रैंक रैंक, ये 2 चीज़ें मुझे लग रहा है सबसे बड़ी। अगर इनको आप सोचिए, रटना हटा दिया, अपने आप आपको समाधान मिल जाएगा, आपने रटना हटा दिया, अरे बच्चा तो पैदाइशी सीखना चाहता है, हर इंसान सीखना चाहता है, हम डेली उसको, एक तो स्कूल्स में कई जगह ऐसे सिस्टम्स हैं कि बोर्ड से कॉपी करने वाला, तो उस बेचारे की सोच कहाँ आ पा रही है, वो तो कॉपी करना सीख रहा है। आप सोचिए डेली प्रैक्टिस उसकी जब कॉपी करने की कराई जा रही है तो उसका दिमाग कहाँ चल पा रहा है।
ये जो भी हमारे सिस्टम्स हैं जहाँ पर ये रटने वाला, कॉपी करने वाला सिस्टम है, ये वाकई में जो नेचर ने जो बच्चे को यहाँ पर इस संसार में लेकर आए और उसको जो इनहेरेंट कैपेबिलिटी दी है सोचने की, समझने की, सीखने की, हम उसको ब्लॉक करते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम। तो अगर ये रटने वाला पार्ट हटा दो, उसको फ्रीडम टू एक्सप्रेस। कई जगह ये होता है, बच्चा बोलता नहीं ऐसा ही आंसर लिखना है, टीचर ने लिखा है। भाई क्यों ऐसा ही आंसर लिखना है? जो तुम्हें समझ में आ रहा है उस समय, आंसर तो वो क्वेश्चन का ही देगा, जो पूछा गया वही तो देगा। वो अपने तरीके से देना चाह रहा है, उसको फ्रीडम वो दो। वो फ्रीडम, वो नंबर के चक्कर में कि मार्क्स कट जाएंगे तो लोग पेरेंट भी कि भाई लेकर बैठे कॉपी, बताओ रटा हुआ जवाब दो, बच्चा भी फिर वही रटा हुआ। तो यहाँ पर मुझे लगता है बच्चे का ओवरऑल जो डेवलपमेंट होता है वो रुक जाता है। समझने की क्षमताएं, सीखने की क्षमताएं कम हो जाती हैं। जो हमारे एंशियंट टाइम के गुरुकुल्स होते थे, उनमें जब कोई बच्चे का एडमिशन होता था और जब वो गुरुकुल से बाहर निकलते थे तो उनकी जो ओवरऑल पर्सनैलिटी होती थी वो हर फील्ड में बहुत अच्छा परफॉर्म करते थे, आइदर इट मे बी पॉलिटिक्स और एजुकेशन सिस्टम और एनी अदर फील्ड। और जो अभी के स्कूल्स हैं वो क्या अपने स्टूडेंट्स को ऐसा रेडी कर रहे हैं कि वो हमारे स्कूल से निकलने के बाद रियल लाइफ में अच्छा परफॉर्म कर पाएँ? नहीं, ये तो देखो अंग्रेजों के आने के बाद जो व्यवस्थाएं गड़बड़ हुई, मैकेले वाली व्यवस्थाएं चल रही हैं। अब सरकार इतने प्रयास कर रही है, जो चेंजेस ला रही है। ठीक है। अब देखेंगे कि काफ़ी चीज़ें, जैसे बोलते हैं सिलेबस कम कर दिया है, इसलिए सिलेबस कम कर दिया कि इनकी एक्टिविटीज़ ज़्यादा करवाई जाए और वो एक्टिविटीज़ भी इस तरीके से प्लान की जाएं कि इन बच्चों के सोचने समझने की क्षमताएं, इनकी स्किल्स डेवलप हों। तो एक सरकार ने सार्थक कदम तो उठाया है, बट वो मल्टी डायमेंशनल अभी आने में समय लगेगा। गुरुकुल सिस्टम का तो खैर, अगर नॉर्मल जनमानस से भी बात करोगे कि हम सभी मुरीद हैं उस सिस्टम के, बट उसको आने में अभी समय लगेगा, अभी हम दूर हैं। बट हाँ, सार्थक प्रयास जरूर चल रहा है। थैंक यू सो मच सर, हमारे पॉडकास्ट के लिए। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा आपसे बात करके। अगेन थैंक्स अ लॉट। मुझे इस लायक समझा कि आपके पॉडकास्ट में मैं अपना व्यूज़ रख सकूं, एंड आई विश कि जो भी सुने एजुकेशन सिस्टम को लेकर, पेरेंटिंग को लेकर, यहाँ से कुछ चीज़ें सीखें और इम्प्लीमेंट करें।